موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ آخر کار فتح حق کو ہوئی۔ فرمان الہی ہے، تحقیق ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، مگر پھر بھی اس نے حق کو جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دو؟ بس ہم بھی تمہارے مقابلے میں اسی طرح کا جادو ضرور لائیں گے، لہٰذا تم ہمارے اور اپنے مقابلے کا ایک وقت اور جگہ مقرر کر لو، جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرنا۔ صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے وعدہ کا وقت عید کا دن ہے اور لوگوں کو دن چڑھتے ہی جمع ہو جانا چاہیے۔ بس فرعون لوٹ گیا اور اپنے تمام ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر مقابلہ میں آ گیا۔ چنانچہ ایک معین دن میں مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور عام لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی اس اجتماع میں حاضر ہوگے تاکہ اگر فرعون کے جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں؟ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا، جی ہاں، بلکہ اس صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اس وقت ان کے جھوٹے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں کو نصیحت۔ جب فرعون، اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ فرمان الہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر جادوگروں سے کہا، تمہاری شامت ہو، تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہی رہا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے اس معاملہ میں اختلاف اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین نظام زندگی کو برباد کر دیں، لہٰذا تم اپنے تمام داؤ پیچ اکٹھے کرو اور صف باندھ کر آگے بڑھو، اور جو آج کے دن غالب آئے گا وہی کامیاب رہے گا۔ جادو کے ذریعہ سے لوگوں کی نظر بندی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگی۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ فرمان الہی ہے، سورہ یونس آیات 81 تا 82۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم تو جادو پیش کر رہے ہو، یقیناً اللہ اسے جلد ہی بے اثر بنا دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو کامیاب ہونے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے، اگرچہ مجرم اسے کتنا ہی ناپسند کرتے ہوں۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے
अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डालें तो वो लोगों को बहुत बड़े सांपों की सूरत में नजर आने लगी। लोग उनके जादू से बहुत मुतासिर हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में खौफ खाने लगे कि कहीं लोग उनके करतब से मुतासिर ना हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अब आप भी अपनी लाठी जमीन पर डालें। लिहाजा जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो बहुत बड़ा इजदहा बनकर जादूगरों की फेंकी हुई रस्सियों और लाठियों की तरफ आया और एक एक करके सबको तेजी से निगलने लगा। लोग ये मंजर देखकर ताज्जुब करने लगे और जादूगर भी इस सूरत हाल को देखकर हैरान हो गए और वो ये समझ गए कि ये जादू या वहमो ख्याल नहीं बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हक है जो अल्लाह ताला की कुदरत की सूरत में जाहिर हुआ है। हकीकत को समझते ही तमाम जादूगर और फिरौन की कौम के बहुत सारे लोग बगैर किसी खौफ के अल्लाह ताला के हुजूर सजदा में गिर गए और सबके सामने हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। फरमाने इलाही है और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को बजरिया वही हुक्म दिया कि आप भी अपनी लाठी जमीन पर डाल दें। बस वो असा अचानक अजदहा बनकर उनके सांपों को निगलने लगा जो वो जादूगर बनाकर लाए थे। आखिरकार हक गालिब आ गया और जो कुछ जादूगरों ने किया था वो बातिल हो गया। बस फिरौन और उसकी कौम के लोग उस मौका पर मगलूब हो गए और जलीलो खार होकर मैदान से वापस लौटे और सारे जादूगर बेइख्तियार अल्लाह के हुजूर सजदा में गिर गए। कहने लगे, हम कायनात के रब पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। फिरौन ने जब ये देखा कि जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ा से मगलूब होकर मुसलमान हो चुके हैं और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की अवाम की नज़रों में कदर मंजिलत बढ़ गई है तो वो बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने की मेरी जो आखिरी चाल थी वो भी नाकाम हो गई। लिहाजा उसने मकरो फरेब का सहारा लेते हुए जादूगरों को धमकी दी कि तुमने मेरी रियाया होने के बावजूद मेरी इजाज़त के बगैर मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया है। मुझे तो ये मालूम हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा उस्ताद है और तुम सब ने मिलकर ये साजिश तैयार की है कि यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल कर खुद आराम से रहो। मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा ताकि आइंदा किसी को ऐसी गद्दारी करने की जुर्रत ही ना हो। पहले तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा और फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। फरमाने इलाही है। फिरऔन ने कहा, क्या तुम मेरी इजाजत से पहले ही उस पर ईमान ले आए हो? यकीनन यही तुम्हारा बड़ा उस्ताद है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है। सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा कर तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर लटकवा दूंगा और तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी सजा ज्यादा सख्त और देर पा है। जादूगरों ने जवाब दिया, हम तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे इन रोशन दलाइल पर जो हमारे सामने आज के हैं और उस जात पर जिसने हमें पैदा किया है। लिहाजा तो जो चाहता है कर गुजर और तू जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ इस दुनिया की हद तक ही होगा। फिरऔन ने जादूगरों से कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर इस मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हो? यकीनन ये तुम्हारी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी जो तुमने मिलकर उस शहर में की है ताकि तुम इस शहर के बाशिंदों को यहाँ से निकाल दो। तुम्हें उसका अंजाम बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। फिरऔन ने जब जादूगरों को सख्त तरीन सजा की धमकी दी तो उन्होंने उस धमकी की कोई परवाह नहीं की, इसलिए कि वो ईमान की मिठास को चख चुके थे और जिसके दिल में ईमान की मिठास बैठ जाए कायनात की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी उसको ईमान से नहीं हटा सकती। वही जादूगर जो चंद लम्हे पहले फिरऔन से इनाम व इकराम और इज्जत के तलबगार थे, ईमान लाने के बाद ऐसे बेखौफ हुए कि सख्त तरीन धमकी भी उनके ईमान को मुतज़लज़िल न कर सकी। उन्होंने इस इंतकामी कार्रवाई के मुकाबले में अल्लाह ताला से सब्र व इस्तिकामत की दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाते हुए उन्हें सब्र व इस्तिकामत पैदा कर दिया। फरमाने इलाही है, और ए फिरौन, तो हमें सिर्फ इस बात की सजा दे रहा है कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए हैं जबकि वो हमारे पास आ गई हैं। ए हमारे रब, हमें सब्र की तौफीक अता फरमाइए और हमें हालत इस्लाम में मौत दीजिए। फिरौन और इसकी कौम मूसा अलैहिस्सलाम की रूहानी कुव्वत का मुजाहिरा देखकर मरूब हो गई
और फिरौन ने जादूगरों और दीगर ईमान वालों पर अपने शदीद गुस्सा का इजहार करते हुए उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को वो कोई नुकसान न पहुंचा सका। फिरौन के दरबारियों को इस पर शदीद सदमा पहुंचा। उन्होंने फिरौन को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के खिलाफ खूब भड़काया। फिरौन ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने का दोबारा हुक्म जारी कर दिया, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी परेशानी का शिकार हुई और आप अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि आपकी विलादत से पहले भी हमारे लड़कों को कत्ल किया जाता रहा और अब दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया है, क्या करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के मुकाबले में अपनी कौम को अल्लाह ताला से मदद तलब करने और सब्र करने की तलकीन की और साथ साथ ये खुशखबरी भी सुनाई कि बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें फिरौन के जुल्म व सितम से निजात अता फरमाएंगे। फरमाने इलाही है। और कौमे फिरौन के सरदारों ने फिरौन से कहा, क्या तुम मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को यूं ही आज़ाद छोड़ दोगे ताकि वो मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तुम्हें और तुम्हारे माबूदों को छोड़ दें। फिरौन ने कहा, हम उनके नौमौलूद बेटों को कत्ल कर देंगे और बच्चियों को जिंदा रहने देंगे और हम इन पर मुकम्मल गलबा रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह से मदद तलब करो और सब्रो करो, बेशक ये ज़मीन तो अल्लाह ही की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों ही के लिए है। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आपके पैदा होने से पहले भी हमें तकालीफ दी गई और आपके आने के बाद भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और उनकी जगह तुम्हें इस सरजमीन का मालिक बना देगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे अमाल करते हो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर वाकई ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। बस सच्चे मोमिनों ने कहा, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिमों के जरिया आजमाइश फितना में न डालना और आप हमें अपनी रहमत से काफिर कौम से निजात अता फरमाइए। फिरौन बनी इसराइल की नरीना औलाद के कत्ल का हुक्म दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूहानी गलबा का ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसके दिल को सुकून नहीं था। आखिरकार उसने ये फैसला किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किए बगैर ये मामला खत्म नहीं होगा। उसने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम को हमने यूं ही छोड़े रखा तो मुझे ये खौफ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दीन को बदल देगा और मिस्र में फसाद फैलाएगा, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही फिरौन की साजिश का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर मुतकब्बिर और जालिम के जुल्म से निजात के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगी। फरमाने इलाही है, फिरौन कहने लगा, मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल कर देता हूँ और वो मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकार कर देख ले। मुझे ये डर है कि ये तुम्हारे दीन को बदल देगा या मुल्क में फसाद बर्पा कर देगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स की बुराई से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता। फिरऔन की कौम के एक मोमिन का ऐलाने हक। जिस मजलिस में फिरऔन और उसके दरबारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, उसी मजलिस में फिरऔन की कौम में से एक ऐसा मोमिन भी मौजूद था जो अभी तक अपने ईमान को छुपाए हुए था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा सुना तो अपनी कौम को समझाया कि तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो अपनी रिसालत पर दलाइल भी लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का नुकसान उसे ही पहुंचेगा, अगर वो सच्चा है तो फिर जिस अजाब की वो धमकी दे रहा है वो तुम्हें जरूर पहुंच कर रहेगा। लिहाजा तुम ये न समझो कि हमेशा तुम्हारी बादशाहत रहेगी, उसको जवाल भी आ सकता है। और मुझे तो तुम्हारे बारे में ये खतरा है कि कहीं तुम्हारा हाल भी तुमसे पहले की नाफरमान कौमों जैसा ना हो, जैसे कौमे नूह, कौमे आद, कौमे समूद वगैरह। याद रखो, क़यामत के दिन तुम्हें कोई भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने वाला नहीं होगा। फिर उसने अपनी कौम को भी कई नसीहतें की। फिरऔन और उसके दरबारियों ने जब उस मोमिन की गुफ्तगू सुनी तो उनका रुख हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हटकर उस मोमिन की तरफ हो गया और उन्होंने चाहा कि पहले उसे कत्ल करें, मगर अल्लाह ताला ने फिरऔन और उसके दरबारियों की चाल को नाकाम बना दिया। फरमाने इलाही है। और इस मौके पर
आले फिरौन में से एक मोमिन आदमी जो अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा, क्या तुम लोग एक आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल करोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलाइल लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल खुद उस पर पड़ेगा, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा करता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें जरूर पहुंच कर रहेगा। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला बहुत बड़ा झूठा हो। इस मोमिन ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हारी हुकूमत है और मुल्क में तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ जाए तो कौन हमारी मदद करेगा। फिरौन ने कहा, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो मैं मुनासिब समझ रहा हूँ, और मैं तुम्हें भलाई की राह बता रहा हूँ। उस मोमिन ने फिर कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे डर है कि कहीं तुम पर भी ऐसा बुरा दिन ना आ जाए जो बहुत सी नाफरमान कौमों पर आया था, जैसे कौम नूह, आद, समूद और उनके बाद वाली कौमों पर आया था। और हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता। ऐ मेरी कौम, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे दिन का खौफ है जिस दिन फरियादी आवाजें बुलंद होंगी। उस दिन तुम पीठ फेर कर भागते फिरोगे, मगर तुम्हें अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला ना होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और इस मोमिन शख्स ने कहा, ऐ मेरी कौम, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता बताता हूँ। ऐ मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो बस चंद दिन की जिंदगी है, और हमेशा का घर तो आखिरत ही है। जो शख्स बुराई करेगा उसे उतना ही बदला दिया जाएगा जितनी उसने बुराई की होगी, और जो नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहां उन्हें बेहिसाब रिस्क दिया जाएगा। और ऐ मेरी कौम, हैरत है कि मैं तो तुम्हें जहन्नम से निजात की तरफ ला रहा हूँ और तुम मुझे आग की तरफ ला रहे हो। तुम मुझे ये दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह का इनकार कर दूं और उसका शरीक इन खुद साफ्ता माबूदों को बनाऊं जिनके मुताल्लिक मुझे कोई इल्म नहीं, हालांकि मैं तुम्हें हर चीज पर गालिब, खूब बख्शने वाले अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। ये यकीनी बात है कि तुम मुझे जिन खुद साख्ता माबूदों की बंदगी की दावत दे रहे हो वो तो इस काबिल ही नहीं कि उन्हें दुनिया में या आखिरत में पुकारा जाए। बेशक हम सब को अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है, और हद से बढ़ जाने वाले लोग ही यकीनन जहन्नमी हैं। जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूँ अनकरीब तुम उसे याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है। आले फिरौन ने उस मर्द मोमिन के खिलाफ जो भी बुरी चालें चली थीं, अल्लाह ने उन सब से उसे बचा लिया, और आले फिरौन खुद ही बदतरीन अजाब में गहर गए। वो अजाब आग है जिस पर वो आले फिरौन सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन कयामत कायम होगी तो हुक्म होगा कि आले फिरौन को सख्त अजाब में दाखिल करो।